Now we have arrived our last talk, and last talk will be conducted by Professor Fawad Farooq. He is a professor of National Institute of Cardiology, Karachi. Thank you very much, Adnan. And I think after these two very nice talks, it will be difficult for me, sadly, to cover the subject, starting from a risk factor, hypertension, then heart failure, now coming back again to risk factor, dyslipidemia. This is just an introduction to my Facebook page and YouTube channel. One of our friends asking about that. You just have to write Dr. Fawad Farooq for academic things. You can get there. Just Dr. Fawad Farooq for dyslipidemia management. So what I'll do, we have a mix gathering in a way that some are general practitioners, diabetologists, physicians. So I'm starting with cases and we'll go through the presentation, the scientific way of answering those queries. So what I'm just displaying a lipid profile. That's a common thing we have. किसी का मैसेज आता है कि ये मैंने लिपिड प्रोफाइल कराया है, बता दें करना क्या है, या मेरे भाई का ये है या मेरी बहन फलां का है. So let's see this lipid profile. Total cholesterol 215, 135 LDL, 200 TGs and 42 HDL. कोई एक थॉट के क्या करेंगे? Anyone? Just a quick. Just lifestyle changes. Okay, let's see. Same levels, and we'll see three different patients. 45 years male with no known comorbids. And now I would really ask you to just contemplate the answer in your mind. We'll go through the presentation and come again to these questions. 5 years male with no known comorbids did his lipid profile by himself, और यही same level है cholesterol के. What you'll do with this patient? Second, a 60 years old smoker, diabetic and hypertensive male, lipid profile showing same values. So what you'll do with this patient? We'll come at the end to this. Just ask you to just contemplate the answers. What you'll do with him? 44 years diabetic male had extensive anterior wall MI 2 months back. His lipid profile showing same. Three different characteristics. Previously आपने खट करके आंसर दे दिया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. So you have questioned me what are the characteristics. आप SMS में भेजे हुए लिपिड प्रोफाइल पे जवाब नहीं दे सकते. We know that this disease is a progressive disease, starting with even non-flow limiting, just foam cells deposition, and ultimately leading to atherothrombosis events and all this. So two phases, atherosclerosis and atherothrombosis. And this atherosclerosis, whenever it is subclinical, nobody knows who's harboring these plaques. And it's all depend on risk assessment to decide which patient needs which category of treatment. That we all know that this disease burden is at rise. An increase in the elderly population, the rapidly increasing rate of overweight and obesity, hypertension, and other risk factors, particularly in urban areas. Reason for having this disease really permanent. When we're seeing 35, 40 years, extensive MIs and everything with strokes and all other. अब हम उन मसलों को सॉल्व करने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस को क्विकली गो थ्रू करते हैं. बहुत बिजी है, इस तरफ ना देखें, सिर्फ इस तरफ ये देख लें. इफ यू कैटेगराइज पेशेंट्स एज 0-19, 20-35, 40-75, इनमें फिर रिस्क आप असेस करें. लेस देन 5% टोटल रिस्क है तो कुछ नहीं करना है. 5 to 7.5% में एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, डिस्कशन विद पेशेंट, may need statins. This we are talking about primary prevention. Still having no atherosclerotic discovered disease. Similarly, यही पेशेंट अगर ऐसा है जिसमें 190 का HDL है straight away या diabetic है, तो these patients will need statin with different targets. So primary prevention में risk assess करना है, LDL levels हैं, 190 से ज़्यादा है तो treat होगा, diabetic है तो treat होगा. Diabetic high risk है तो high intensity,
लो टू इंटरमीडिएट रिस्क है तो इंटरमीडिएट इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी होगी। ये वो रिस्क हैं, वैसे तो बहुत सारे रिस्क मॉडल्स हैं, बट दीज आर द कॉमन ACCH रिस्क कैलकुलेटर, जिसकी बुनियाद पे आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख के रिस्क असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट का कितने % रिस्क बनेगा फॉर हैविंग कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स इन फ्यूचर। तो ये अप्लाई करना होगा वो रिस्क डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट्स में। ये कुछ एडिशनल रिस्क एनहांसर हैं जो हम एडिशनली देख सकते हैं पेशेंट्स में। फैमिली हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट of premature CAD, persistent LDL greater than 160, CKD, metabolic syndrome, condition specific to women, preeclampsia, premature menopause, inflammatory diseases, ethnicity, South Asian, we are. Similarly, lipid biomarkers, triglyceride persistently greater than 175. कुछ नई चीज़ें आ रही हैं विच आर नॉट राइट नाउ मेजरेबल, नई तो नहीं है, काफ़ी पुरानी है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। CRP है, लाइपोप्रोटीन ए है, एपोप्रोटीन बी, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, एडिशनल रिस्क एनहांसर्स और टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। ये एक और मॉडल है उन पेशेंट्स के लिए जो 40 से 70 ग्रेटर देन 40 इयर्स एज है और उनका ग्रेटर देन 70 विदाउट डायबिटीज है। तो 7.5 से लेस देन 20% है, तो इसमें रिस्क आप असेस करेंगे और अगर ये मॉडरेट इंटेंसिटी थेरेपी दी जा सकती है, नहीं है, रिस्क कम है, तो आप कैल्शियम स्कोरिंग कर सकते हैं। दैट्स एन एडिशनल पॉइंट टू पिकिंग द रिस्क ऑफ योर पेशेंट। अमूमन CT एंजियो किस लिए यूज हो रहा है? जिनको सिम्टोमेटिक CAD है। इट्स नॉट इंडिकेटेड देयर, यू नीड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स वेदर यू नीड कोरोनरी एंजियो और अदर। वो जिसको कोरोनरी एंजियो एडवाइस की जाती है वो CT एंजियो करा के आ जाता है। दिस इज कैल्शियम स्कोरिंग फॉर असेसिंग रिस्क ऑफ योर पेशेंट फॉर हैविंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कैल्शियम स्कोरिंग आप कर लेंगे, 100 से ज़्यादा उसका है तो क्लियरली यू कैन स्टार्ट स्टैटिन इन दीज पेशेंट्स। सो वो दो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के साथ हैं पेशेंट्स एंड यू आर अनडिसाइडेड देयर रिस्क इज हाई, इंटरमीडिएट और लो, आप कैल्शियम स्कोरिंग कर लें और अगर उसमें ज़्यादा आ रही है तो ही विल बी नीडिंग स्टैटिन। अच्छा जी, डिजीज एट एवरी एनी बेड, इसमें स्टैटिन देनी ही देनी है। इसमें फिर दो तरह के जो हैं, वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क। ग्रेटर देन 1 मेजर इवेंट हो चुका है, ये वो हाई रिस्क की डेफिनेशन है ताकि आप वहां डिफरेंशिएट कर सकें लेस देन 70 या लेस देन 55 LDL, वरना तो लेस देन 70 आपका टारगेट होता है, लेकिन बहुत लोग अचीव नहीं करते हैं। हवा में चल रही होती है स्टैटिन की, बस चल रही है, लिपिड प्रोफाइल कब किया लास्ट पता नहीं है। सिमिलरली किसी को एक इवेंट हुआ है तो उसके साथ ये हाई रिस्क फीचर्स मौजूद हैं, देन ही विल बी अगेन अ वेरी हाई रिस्क फॉर अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये वो टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने हैं इन टर्म्स ऑफ LDL। लेस देन 130 लो रिस्क के लिए, यानी आम कॉमन जो पेशेंट्स हैं लो रिस्क हैं, इफ यू आर नॉट अचीविंग योर लेस देन 130 देन यू नीड ड्रग्स फॉर दोज। सिमिलरली मॉडरेट रिस्क हैं जिसमें डायबिटिक्स भी आ जाते हैं, लेस देन 100, हाई रिस्क लेस देन 100, वेरी हाई रिस्क लेस देन 70 और एक्सट्रीम हाई रिस्क में लेस देन 55 LDL के टारगेट्स हैं। और अभी हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ऑल्दो ये अभी हमारे पास मेजरेबल नहीं है। एपोबी, लेपोप्रीन एपोबी, जो LDL के अलावा भी दूसरी जगहों पर है। So sometimes you can have a patient with good targeted LDL but still having events, maybe because of these additional apolipoprotein B और lipoprotein A। तो इसलिए आप aggressively treat अभी LDL को ही कर रहे हैं, ये हमारे पास अभी measures नहीं हो रहे हैं। ड्रग्स हमें पता है कि ये सारी स्टैटिन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट एरियाज को अफेक्ट कर रही होती हैं। कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, PCSK9, एब्सॉर्प्शन इनहिबिटर, एजेटामाइब्स। इनका ये है कि यूजुअली व्हाट वी आर सीइंग पीपल आर यूजिंग देम एट स्टार्ट ऑफ डिजीज, 5 milligram of Rizuva and 10 milligram of ezetimibe. It should be used once you are exhausted with your conventional statin therapy and unable to achieve targets. जो भी हमने टारगेट जिक्र किए थे, अगर आपने स्टैटिन दे दी है और 20-40 उसके बावजूद भी टारगेट अचीव नहीं हो रहे, then you need to add on ezetimibe, or then after that, even after ezetimibe you are unable to achieve your target, then PCSK9।
जो अभी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है. Statin history, we all know, started with this. And lastly, we have newer pitavastatin. Conventionally, we are using for high intensity rosuva and atorvastatin. कैरेक्टरिस्टिक्स इनके प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट एलडीएल पे है, एचडीएल को भी रेज करते हैं. प्रॉब्लम्स विद मायोपैथी, इंक्रीज लिवर एंजाइम्स दैट यू हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स सिम्टम स्टेटस. Therapeutic benefit, we all know: reduce major coronary events, CAG mortality, reduce coronary procedures, stroke, total mortality. हर चीज़ पे इफेक्ट है. और अभी एडिशनल इफेक्ट की बातें हो रही थी, पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से एविडेंस है कि एंडोथेलियल फंक्शन, प्लेक स्टेबलाइजेशन, वेस्कुलर स्मूथ मसल, प्लेटलेट इनहिबिशन, एंटी थ्रोम्बोसिस, इन बहुत सारे एडिशनल प्लियोट्रोफिक इफेक्ट जिनका हमने नाम दिया हुआ है, विच आर बियॉन्ड कंट्रोलिंग एलडीएल लेवल्स. So, coming back again to this, starting as a disease and ending at atherothrombotic event. So, main really is to assess your patient risk to decide which of your patient needs statin therapy or not, and then start early. Because यहाँ पे शुरू करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, यहाँ पे शुरू करेंगे तो इतना फायदा तो है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलना था. And try to get your target as early as possible. ये फिर हमारे पास पैटर्न है फॉर यूजिंग स्टैटिन्स. हाई इंटेंसिटी थेरेपी जब आप यूज करने जा रहे हैं तो अटोरवा और रिजुवा की डोजेजेस, और ये इनकी मॉडरेट इंटेंसिटी में certainly we have pitavastatin. Only pitavastatin available is this Petalo, claimed to be more tolerable as compared to other statin, but still in moderate intensity therapy, not in high intensity. But if your patient is not tolerating, certainly you can switch to. ये एक स्लाइड मैंने हक अदा किया है थोड़ा सा, तो सिर्फ एक लिए, वैसे 6-7 स्लाइड थी. तो ये क्लेम है स्टैटिन थेरेपी इज वेल डॉक्यूमेंटेड टू लोअर कोलेस्ट्रॉल. ये व्हाट्स यानी टॉलरेबल है, लेकिन बहुत हार्ड एविडेंस नहीं है, कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या इस टाइम के. तो वापस हम उसी जगह पर आ रहे हैं जहां से हम शुरू हुए थे, बिछड़े थे हम जहां से. ये तो वही जगह है जी. अब मजीद भी बिछड़ेंगे. अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? नाउ इट्स ओपन. थोड़ी सी बात करके फिर हम खत्म कर देंगे. थोड़ा सा आपका इनपुट, हल्का सा. रिस्क असेसमेंट. यंग है, 45 इयर्स है, नो नोन कोमोर्बिड्स हैं, थोड़ा सा डिस्लिपिडीमिया है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि मे नॉट नीड, लेकिन मजीद रिस्क एनहांसर देख लें, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें. शुबा है तो कैल्शियम स्कोरिंग करा लें, तो अच्छी तरह स्क्रीन हो जाएगा आपका पेशेंट फॉर रिस्क असेसमेंट. बिल्कुल लो रिस्क है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो जस्ट कंजर्वेटिव मेजर्स वुड बी द आंसर. So same lipid profile, but one patient is just having your conservative measures. ये वाला ये ग्रुप था, तकरीबन लो रिस्क वाला बन रहा है, 5 to 7.5% वाला, जिसमें आपको कुछ ऑफर नहीं करना है. सिमिलरली ये पेशेंट आ जाए तो अब ये वही पेशेंट है, एज बढ़ गई, स्मोकिंग भी आ गई, डायबिटिक भी हो गया, हाइपरटेंसिव भी हो गया, इवन इट्स प्राइमरी प्रिवेंशन. But this patient is going into like 7.5 to 20% वाले रिस्क वाले ग्रुप में आ रहा है. So he will be needing statin target आपके 100 LDL के होने चाहिए, इसमें कि 100 LDL अचीव हो, और वो अचीव करने के बाद दवा रुकनी नहीं है, कंटिन्यू रहनी चाहिए. ठीक है, तो ये वाला ग्रुप था, डायबिटिक बट प्राइमरी प्रिवेंशन में भी अगर बहुत हाई रिस्क है तो ही मे नीड हाई इंटेंसिटी एज वेल. कोई ज्यादा साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत हाई है तो आप हाई इंटेंसिटी ले सकते हैं. ये पेशेंट स्ट्रेट अवे वेरी हाई रिस्क, सो इवन कंसिडरिंग टारगेट टू बी लेस देन 55, सो एग्रेसिव स्टैटिन थेरेपी इसमें. ठीक, एंड कर देते हैं. ये एक बड़ा अच्छा, मैं वो देख रहा था, इसको मेरे ख्याल है सब लोग जाके, बड़ी अच्छी समरी है, यू कैन गो एंड रीड इट बाय योरसेल्फ, डाउनलोड हो जाएगी. ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कोलेस्ट्रॉल रोड मैप, बड़ा डिटेल से समराइज करके सारी चीजें अपडेटेड ये इसमें दी हुई हैं, तो ये जाके आप पढ़ लें. इनका वही कंसिडरेशन है कि जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है. हेल्थ केयर सिस्टम पर फोकस ऑन ट्रीटिंग डिजीज, नॉट प्रिजर्विंग हेल्थ. जब बीमारी आ रही है फिर हम कर रहे हैं, स्टार्ट अर्ली करना है ताकि बीमारी आए नहीं. नॉट एनफ फोकस ऑन लाइफ टाइम रिस्क.
और कंसिडरिंग लाइफ एक्सपोजर टू कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं कि डिजीज कहाँ से शुरू हो रही है, इवन चाइल्डहुड से, टीन एजर्स से, फोम सेल्स डेवलप, फिर आगे बढ़ते रहना, और फिर कुछ नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। जस्ट क्विक 8 पिलर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम द रिटेंशन ऑफ एपोबी, ये वो कल्प्रिट है जो एलडीएल के अलावा 2-3 और जगहों पे मौजूद है, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बट प्रूवन टू बी a main significant culprit of this disease causing atherosclerotic cardiovascular disease. मल्टीफैक्टोरियल है, along with other risk factors, सब चीजों को टेक केयर करना होगा along with statin. इवेंट अकर अमंग इंडिविजुअल विदाउट एक्सट्रीम एलडीएल, बहुत से आप करेंगे इवेंट्स होंगे उनके एलडीएल बढ़े हुए नहीं होंगे, सो समथिंग मोर टू दैट, इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मॉडिफाई करना है। फैमिली हिस्ट्री मोर कॉमन देन इमेजेड, स्पेशली familial dyslipidemia, screening and treatment needed for that. ACVD can be reduced by LDL lowering by multiple different pathways proportion to intensity, जो भी आप दवाई यूज करना चाहें। अभी तक LDL ही हमारा टारगेट है, बट न्यूअर प्लेयर आर कमिंग अप, एपो बी और लाइपोप्रोटीन ए। Obesity and diabetes need to be taken care, उसके साथ एडिशनल मिलके टीजीज और बाकी चीज़ों को गड़बड़ करते हैं, और लाइपोप्रोटीन ए ये उसी का एपोप्रोटीन के साथ मिलके एक एडिशनल चीज़ है जो कल्प्रेट बन रहा है। थैंक यू वेरी मच।